पब्लिक नेम योयो हनी सिंह है, आप जानते हैं उन्हें? हाँ सर, जानते हैं। सालों में चमन में कोई दीदावर आता है, करके रोशन गुलशन वो बगिया को महकाता है। बॉलीवुड को भी नचा दे जो अपने कमाल के इशारों पे, वही रैप का बादशाह योयो हनी सिंह कहलाता है। अपना टाइम आ गया भाई। आपको कैसा लगता है to be the boss of the Indian rap scene? How do you feel to be the boss? I don't think I'm a boss. I don't think I'm a king. I think I'm an emperor. Oh yeah. Louder from here. Come on, say Honey Singh. Honey Singh. Stage is all yours. Yeah, I want to do something really special, and as we know. DHS इंडस्ट्री, जिधर बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, कुछ लोगों ने अपनी एक पहचान बनाई, कुछ लोग स्टिल काफी अंडररेटेड हैं। बहुत सारे लोग रैप लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके लिरिक्स लोगों के दिल में उतर जाएं, लेकिन यही चीज कमाने में बहुत से लोगों को एक उम्र लग जाती है। सबको सिर्फ एक ही चीज की तलाश है, फेम, बिकॉज एट द एंड सबका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। इस पैसे और फेम की दौड़ में एक ऐसा आर्टिस्ट जिसको सबने सुना है और एग्जाम में टेस्ट इतनी तेजी से याद नहीं हुए जितनी तेजी से इसके लिरिक्स याद हो जाते हैं, और वही लिरिक्स आपके माइंड में लूप की तरह चल रहे होते हैं। आज हम चलेंगे वक्त में थोड़ा सा पीछे, जब हम सब स्कूल में थे और वो दौर था ब्लूटूथ का, और ऑफ कोर्स हर दौर का एक किंग तो लाजमी होता है। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द टाइम व्हेन बोहेमिया, फलक एंड मेनी आर्टिस्ट आर इन लाइमलाइट, बट देयर इज ओनली वन ब्लूटूथ किंग, योयो हनी सिंह। योयो हनी सिंह एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसको आज के टाइम के लोग ओवररेटेड समझते हैं, बिकॉज आज के टाइम पर बहुत से रैपर डिफरेंट स्टाइल ऑफ रैप करते हैं, बट हनी सिंह का एक डिफरेंट स्टाइल था, इंग्लिश बीट विद अ मिक्स ऑफ पंजाबी स्टाइल। नो वन वाज डूइंग इंडियन हिप हॉप मच एट दैट टाइम. There was Bohemia and Imran Khan, but that's it. He came and started making Punjabi hip-hop music that was easy on ears and very very catchy. His production was top-notch. Music videos were way ahead of its time in terms of grandness. Brown Rang did 500 million views in era of Bluetooth, जो कि काफी बड़ी बात आ जाती है एक आर्टिस्ट के लिए। और एक और चीज आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे सब्सक्राइब करो, मतलब सब्सक्राइब करो भाई। So Honey Singh came up with the sound which was very new at that time. इस वजह से लोग इनको लूप पर सुनते थे। जब मैं स्कूल में था हर शॉप में बस हनी सिंह के ही सॉन्ग चल रहे होते थे, एंड आई वाज लाइक आखिर कौन है ये बंदा। देन आई स्टार्टेड लिसनिंग हनी सिंह एंड आई टोटली लव्ड हिज सॉन्ग लाइक हाई हील्स एंड हाई मेरा दिल एंड मेनी मोर। सो हनी सिंह started his music journey by doing music sampling. He was a producer back then. He made an album Desi by Nature, which is not available on internet because of that time. But this album CD sold in Birmingham. A company from Birmingham signed him as a music producer in 2004. That company wants to establish itself in India. इसलिए वो हनी सिंह को साइन करना चाह रहे थे, लेकिन this album got flopped and the company went back to England. But in 2005, Honey Singh did rap for the first time in song called Glassy. इसमें हनी सिंह ने इंग्लिश रैप किया and this song reached the BBC World Charts at that time. He made his mark on the music scene with the release of his Punjabi album International Villager in 2011. The album hit track Gabru featuring J Star top of the BBC Asian charts चला गया. During the early 2010, Honey Singh became a sensation in Indian music industry. His collaboration is prominent artists like Diljit Dosanjh. Their song Luck 28 Kudida reached number 1 on the BBC Asian in 2011. It is one of my favorite song of that time और इस सॉन्ग को सबने लूप पर सुना है और मैंने भी बहुत ज्यादा इसको सुना है अपने स्कूल के टाइम पर। By 2012, Honey Singh had set a record for highest fee ever paid to an artist for a Bollywood song. Honey Singh received 7 million for the track in Cocktail and Mastan. अगर हम बात करें Honey Singh YouTube पर कब blow up हुआ, his popularity surged on YouTube with two of his videos, Brown Rang and High Heels, a collaboration with Jazz Dhami, ranking among the top trending videos that year. Following the success of Brown Rang, Honey Singh released अंग्रेजी बीट in collaboration with गिप्पी गरेवाल, जो कि उस टाइम का सबसे बड़ा सॉन्ग था जिसने हनी सिंह को एक टॉप टियर आर्टिस्ट बना दिया इंडस्ट्री में, और ये सॉन्ग उस टाइम का इंडिया का पार्टी एंथम बना। In 2013, Honey became unstoppable by dropping another chartbuster song Blue Eyes, in which Honey Singh showed his versatility in blending Hindi and English lyrics with an international sound, sleek production and catchy hook. अभी भी याद है हर बच्चा यही सॉन्ग गा रहा होता था। In 2014, Honey Singh released Desi Kalakar featuring Bollywood actress Sonakshi Sinha. The song and his music video were
were a huge success with Honey Singh adopting a more cinematic approach to his music. इस ट्रैक ने दिखा दिया कि हनी सिंह एक कंप्लीट स्टोरी टेलर है और एक रैपर ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर है. The song success was followed by other popular tracks such as Love Dose and Birthday Bash, which continued to top charts, dominate parties across the country. Despite हनी सिंह को अभी हेल्थ की वजह से ब्रेक लेना पड़ा करियर से, फिर भी हनी सिंह continued to contribute to the music industry. During this period, he brought the super hit track धीरे धीरे in 2015, a recreation of the iconic song from the movie Aashki, as it was the first Indian song to cross 200 million views on YouTube alone. In 2014, after Desi Kalakar, Honey Singh going through some serious health issues, he was diagnosed with bipolar disorder. Unlike the common belief that stress from fame led to his illness, Honey Singh revealed that it was largely due to extensive use of substances like alcohol, drugs and weed. हनी सिंह सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ड्रग्स करते थे. अक्सर उनको पता ही नहीं चलता था कि वो कर क्या रहे हैं. इस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हुई और वो अपने करियर में काफी पीछे चले गए. बट हनी सिंह की ऑडियंस उस टाइम भी हनी सिंह को कंटिन्यूअस सुन रहे थे और सपोर्ट कर रही थी. हनी सिंह टॉक अबाउट हिज म्यूजिक इन मैनी इंटरव्यूज. हनी सिंह को अपने कुछ सॉन्ग से काफी सैटेनिक वाइब्स आती है, लाइक 4 बोतल वोडका, पार्टी गेटिंग हॉट फॉर प्रमोटिंग एल्कोहल, एंड व्हेन ही वाज डूइंग टूर्स विद SRK, हिज सिख कम्युनिटी स्टार्टिंग प्रोटेस्टिंग कि ये गंदे गाने बनाता है, ही इज डैमेजिंग आवर कल्चर. बट ही रिस्पोंडेड विद द सॉन्ग 4 बोतल्स, सो दैट्स व्हाई ही थिंक इट इज अ सैटेनिक थिंग ही डिड, जो कि सही बात है. हनी सिंह वाज डूइंग ड्रग्स सिंस 2012 एंड व्हेन ही रियलाइज्ड एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन, ही स्टॉप्ड डूइंग दोस थिंग्स. हनी सिंह डोंट लाइक हिज ओन सॉन्ग, लाइक ही सेड इन एन इंटरव्यू, द डम्बेस्ट सॉन्ग आई हैव एवर रोट इन माय लाइफ वाज ब्लू है पानी पानी, पार्टी ऑल नाइट एंड लुंगी डांस. द मोस्ट स्टूपिड सॉन्ग आई एवर रिटन इन माय लाइफ इज ब्लू है पानी पानी. ये कोई गाना है? आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी. In Honey Singh life, many controversies occurred. Like in Mafia Mundir, Badshah was not a part of it, and many things he said about Badshah. एक बड़े घर से थे, he was not a talent which is picked up from streets. And काफी fans का कहना है कि बादशाह पार्ट थे माफिया मुंडीर के. Tell me in the comments what really happened. बादशाह भी काफी talented artist है, but Honey Singh don't talk about him that much. बादशाह is a client for Honey Singh only. बादशाह का कहना है कि ब्राउन रंग उन्होंने लिखा है और ये कहानी का आखिर क्या हल है और क्या सच है कुछ नहीं पता. और कमेंट्स में बताओ ब्राउन रंग किसने लिखा. हनी सिंह रिस्पेक्ट रफ्तार, डिस्पाइट रफ्तार ने बादशाह से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट निकाले हनी के लिए. एंड हनी सिंह सेड रफ्तार, लिल गोलू एंड इक्का माफिया मुंडीर का पार्ट थे और उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा. आफ्टर ओवरकमिंग सिग्निफिकेंट हेल्थ चैलेंजेस, हनी सिंह मेड अ नोटेबल कमबैक इन 2018 विद द ट्रैक मखना, जो कि यूट्यूब पर अच्छे फिगर्स लाया, लेकिन ट्रैक मुझे काफी मिड लगा. इसके बाद हनी सिंह ने बहुत सारे सॉन्ग्स ड्रॉप किए, कुले कुले, काला स्टार एंड मैनी मोर. यूट्यूब पर व्यूज भी डिसेंट आए और गाने भी एक हद तक अच्छे चले, लेकिन ज्यादा नोटिसेबल नहीं रहे. मोस्ट रिसेंटली इन 2024, हनी सिंह लॉन्च्ड हिज ग्रैंड एल्बम ग्लोरी फीचरिंग 18 ट्रैक्स इंक्लूडिंग मिलियनेयर, रैप गॉड एंड जट महकमा. दिस एल्बम मार्क्ड एज significant milestone in his career, received widespread acclaim with multiple songs trending on music streaming platforms. And finally, हनी सिंह ने जिस तरह कमबैक किया वो काफी अच्छा रहा हनी सिंह के करियर के लिए और वो दोबारा इस इंडस्ट्री में रेलेवेंट हो गए. माई फेवरेट सॉन्ग इज मिलियनेयर बिकॉज इसकी बीट बहुत ही ज्यादा कैची है और हनी सिंह का रैप बहुत फ्रेश फील होता है. इफ यू टॉक अबाउट हनी सिंह माइलस्टोन, हनी सिंह गॉट 50 वीडियोस ऑन यूट्यूब जिसने 100 मिलियन क्रॉस किए हैं. दैट मेक्स हनी सिंह द मोस्ट व्यूड आर्टिस्ट. सो दैट्स द होल स्टोरी ऑफ हनी सिंह द ब्लूटूथ किंग. नेक्स्ट किस आर्टिस्ट को कवर करूं कमेंट्स में बताना और कुछ मिस कर दिया हो तो सॉरी फॉर दैट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.